का हमारे साथ खास मेहमान है सुनील नरेन, किसी परिचय का मोहताज नहीं उन्हीं। सुनील नरेन से हमने इंटरव्यू के दौरान पहला सवाल भारतीय टीम T20 टीम के बारे में पूछा, उनकी राय क्या है। Yeah, it's expected. I think India T20 team is a very strong team in general. I think in general they have a good team. So I think even if we have home advantage, I think they were good pitches. And I think playing against India on true pitches where it's batting friendly, I think it's tough to beat them. Sunil, you have played so much cricket in India, especially in IPL. Kolkata is like your second home. So what kind of difference you find the cricket being played in Trinidad, in West Indies and in India? Different cultures. I think the fans love T20 cricket, so I think we had a good turnout today. So I just think it's never going to be easy, but it's tough playing against India no matter where you're playing. So I think we get a good showing in the 50 overs. Hopefully we can be same in the T20s. सुनील नारायण ने सबसे जो पहला मैंने सवाल उनसे किया कि भारत और वेस्ट इंडीज़ इन दोनों मुल्कों में क्रिकेट के कल्चर को लेकर किस तरह की समानताएं या डिफरेंट रहता है, तो उन्होंने साफ कहा कि T20 को लेकर दोनों मुल्कों में क्रेज़ है। और हमने ये देखा भी वेस्ट इंडीज़ के दौरे पर कि भारतीय टीम जहाँ भी जाती थी उन्हें वही सम्मान और वही लाड मिलता था जिस तरह से उन्हें इंडिया में मिलता है। और यही हाल ऐसा नहीं कि भारतीय खिलाड़ियों के साथ वेस्ट इंडीज़ में होता था। वेस्ट इंडीज़ के भी जितने खिलाड़ी आते हैं भारत में IPL खेलते हैं, उन्हें भी उतनी ही लोकप्रियता है। दरअसल क्रिकेट जो है दोनों मुल्कों को काफ़ी तरीके से जोड़ती है और दोनों मुल्कों के हीरो जो हैं वो एक दूसरे के फैंस के बीच में हीरो हैं और सारे लोग एक दूसरे की इज्जत करते हैं। और सुनील नरेन ने उसी बात को दोहराया कि भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच जो क्रिकेट के जो रिश्ते हैं वो ज़बरदस्त हैं और दोनों मुल्कों के फैंस में भी एक दूसरे के प्रति उसी तरह का अगाध सम्मान है। और यही वजह है कि चाहे ऋषभ पंत हो चाहे हार्दिक पांड्या हो, वो भी वेस्ट इंडीज़ में उतने ही बड़े हीरो हैं। If you look at the Indian spin attack, quite a lot of variety, like Vishnu is playing, then Chahal is there, then Ravindra Jadeja, Akshar Patel. How do you analyze India's spin strength? I think they have quality spinners. All the spinners you just mentioned had a great IPL, so I think they have contributed to the game, and I think they have form and they just keep going from strength to strength. It's not easy playing spin, especially if you have quality spin. Who is your favorite among all these friends, or you admire in the most in the current squad among the spinners? Jadu, I think he's a good spinner. He's played long. He's, I think, batting, bowling, fielding. He gives you all three aspects in the game. So he's someone I really enjoy looking at. सुनील नारायण से जब एक पॉइंटेड सवाल पूछा गया कि भारतीय स्पिनर्स में उनका पसंदीदा कौन है, तो उन्होंने बिना हिचकते हुए कुलदीप यादव का नाम लिया। जी हाँ, और ये चौंकाने वाली बात नहीं है क्योंकि सुनील नारायण ने कुलदीप यादव के साथ बहुत वक्त बिताया है। कोलकाता नाइट राइडर्स में उनके खेल को बहुत नज़दीक से देखा है। ये अलग बात है कि कुलदीप फ़िलहाल T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं होंगे, लेकिन जो बात नरेन ने इस युवा खिलाड़ी के लिए कहा, उत्तर प्रदेश के इस कमाल के स्पिनर के बारे में कहा, निश्चित तौर पर उनकी हौसला अफजाई ज़रूर होगी। I'm sure growing up during your formative years, you must have seen that and debate who is best, Brian Lara or Sachin Tendulkar. And I will ask on them first. So once both have feelings, what is your take on that? They are both great in their own right. I think I'm trying to say who's better than who. I think you shouldn't. They both are legends of the game, and they will continue being legends of the game. I think in their own right, they made a name for themselves. So I think basing them who's better, I don't think that's a question. They gave the game a lot of joy and happiness, and I'll leave it as that. सुनील नारायण दरअसल उसी त्रिनिडाद से आते हैं जहां के ब्रायन लारा हैं। ब्रायन लारा को प्रिंस कहा जाता है, अब तो वो किंग हो गए हैं और सुनील नारायण के आदर्श रहे हैं। इसके बावजूद जब सुनील नारायण से ब्रायन लारा और सचिन तेंदुलकर के बारे में, तुलना के बारे में सवाल पूछा गया, ये पूछा गया कि उनमें से उनका फेवरेट कौन है, तो नरेन ने अपने देश की परवाह या अपने हीरो की परवाह नहीं की। नरेन ने वही बात कही जो शायद कोई भी एक क्रिकेट प्रेमी कहता है, जो सच्चे दिल से क्रिकेट को प्यार करता है, कि क्रिकेटर्स के बीच में तुलना कभी भी नहीं होनी चाहिए। हर खिलाड़ी अपने आप में महान है और यही बात सुनील नरेन ने कहा कि तेंदुलकर और ब्रायन लारा दोनों अपने अपने तरीके से महान हैं और उनकी तुलना उचित है। वाकई में एक लेफ्ट हैंड और एक राइट हैंड और दोनों दिग्गज बल्लेबाज हैं। ब्रायन लारा की वेस्ट इंडीज़ में तूती बोलती है, लेकिन सुनील नरेन ने इंडिया में और इंडिया के बाहर भी
जलवा देखा है तेंदुलकर का। और तो और खुद सोचिए, सुनील नारायण का नाम तो भारतीय क्रिकेट के इतिहास के एक दिग्गज खिलाड़ी सुनील गावस्कर, जो खुद तेंदुलकर के हीरो रहे हैं, उनके नाम पर पड़ा है। तो भला सुनील नारायण कैसे ये कहते कि उन्हें एक खिलाड़ी पसंद है ज़्यादा और नहीं। और ये बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी। आगे सुनते हैं सुनील नारायण ने बाकी मुद्दे पर क्या कहा। My last two questions, Sunil. Leading up to the World Cup, everyone is talking about T20 World Cup, and you have seen how much cricket has changed. You have been part of the T20 World Cup champion. What's wrong with India? Such a formidable lineup. Even if you look at the paper, it always seems like they will win the trophy, but it just doesn't happen. I think when you play a series, you can lose a game or two and still come out in especially in a 5-match series. But in a World Cup, from probably sometimes you win one game and you could be out of the next round. So I think that's where the pressure is, and I think that's where the hardest part in World Cup is. तो आपने सुना सुनील नारायण ने अपने जवाब में क्या कहा। मैं अपने तमाम जो हमारे हिंदी भाषी दोस्त हैं उनकी सुविधा के लिए बता दूं कि भाई सुनील नारायण ने वही बात कही जो रोहित शर्मा ने एक्सेप्ट की थी दुबई में, कि भारतीय टीम बायलैटरल सीरीज़ में तो बहुत अच्छा खेलती है, लेकिन जब बात आती है मल्टीनेशनल टूर्नामेंट की, चाहे एशिया कप हो चाहे वर्ल्ड कप हो, वहाँ पर वो क्यों हार जाती है। तो सुनील नारायण का भी यही कहना है कि जब बायलैटरल सीरीज़ होती है उसमें अगर 1 या 2 मैच आप हारते हैं तो तुरंत वापसी कर सकते हैं, क्योंकि अब ओपोजिशन वही ओपोजिशन रहती है, उसको आप एनालाइज कर लेते हैं, अच्छा क्या हुआ बुरा क्या हुआ, और आप वापसी कर लेते हैं। लेकिन जो हाई प्रोफाइल टूर्नामेंट होते हैं, चाहे वर्ल्ड कप हो चाहे एशिया कप हो, वहाँ पर आपको एक ओपोजिशन के खिलाफ एक ही मैच मिलता है। अगर वो आप मैच हारें दोबारा मौका नहीं मिलता है। भारत ने ये सबक सीखा था पिछले साल T20 वर्ल्ड कप में, 2021 में, 2022 में भी अगर आप देखा जाए भारत के लिए वैसा ही शेड्यूल है, जहाँ पर पहला मुकाबला पाकिस्तान के साथ है, उसके बाद साउथ अफ्रीका ग्रुप में है इंडिया के, फिर एक तीसरी टीम होगी। संभलना होगा टीम इंडिया को। Thank you so much, Sunil, for sparing your valuable minute with us. I truly appreciate that. Thanks a lot. तो दोस्तों, बड़ी मुश्किल से सुनील नारायण से मैंने ये वक्त लिया था। आपको बता दूं इसके बैकग्राउंड की स्टोरी, आपने तो इंटरव्यू देख लिया 2 पार्ट में, लेकिन इसके पीछे भी एक किस्सा है। सुनील नारायण को मनाना इतना आसान नहीं था। सुनील नारायण मुझे पहली बार जब वेस्ट इंडीज़ में मिले तो उन्होंने खुद से फ़ोन नंबर दिया। उन्होंने कहा कि मैं अगले दिन बात करूँगा, घर आऊँगा, लेकिन वो व्यस्त थे अलग अलग वजह से। सुनील नारायण बहुत ज़्यादा इंटरव्यू देने के लिए जाने नहीं जाते हैं। कोलकाता में भी जब वो IPL खेलते हैं तो आपने उनके बहुत ज़्यादा इंटरव्यू नहीं देखे होंगे, क्योंकि उन्हें ट्रस्ट नहीं होता है, बहुत जल्दी वो बातें नहीं करते हैं। लेकिन मैं पीछे था, उनके पीछे लगा था कि भाई मैंने उनको वायदा किया कि मैं ऐसे कोई सवाल नहीं पूछूंगा कि जिससे वो अनकंफर्टेबल फील करें, और उन्होंने वक्त दिया। और 2 पार्ट में मैंने ये इंटरव्यू आपको दिखाया, और आप लोगों ने पहले पार्ट को बहुत लाइक किया, दूसरे पार्ट को भी उम्मीद है लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को और अपना फीडबैक देंगे। और मुझे एक फ़ीडबैक ज़रूर लेना है कि मैंने कोशिश की है कि ये हिंदी में भी ट्रांसलेट करके मैं बताता हूँ, वो कैसा लगा आपको।